Hello students, this is our second lecture of the hire purchase system. In today's lecture, we are going to start with the second situation when calculation of interest when the interest is not included in the amount of the investment. In the first lecture, we have completed that when the cash price and the rate of interest both are given, and we have learned how to write the general entries. In today's lecture, we are starting with our second situation when the interest amount is not included in the installment. In the first lecture, we have learned that the interest is included in the installment, but in this situation, interest is not included in the installment. And in this lecture, we also learn to prepare accounts in the books of the hirers. So let's start with the illustration number 3. Balwant Company acquire a machine on the hire purchase on 1st April 2008. That means Balwant Company is a hirer. The term of the contract was as follows. The cash price of the machine was 10,000. That means cash price 10,000 hai. 4,000 will be paid on the signing of the contract. That means 4,000 down payment hai. Then the balance was to paid in annual installment of the 2,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी कि बेसिकली 2000 तो पे करना ही पड़ेगा टूवर्ड्स द कैश प्राइस और प्लस में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होगी. इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, राइट. जो हमने लास्ट सम किया था उसका 10,000 इंस्टॉलमेंट था, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, बट यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली किया गया है दैट इज 2000 प्लस इंटरेस्ट वी हैव टू पे. Interest chargeable on the outstanding balance 6% per annum. Depreciation 10% per annum written down on the straight line method. You are required to show the relevant accounts from the 1st April 2008 to 31st March 2010. यानी कि अप्रैल 2008 से लेकर 2010 तक 3 years का हमें अकाउंट्स बनाना है, जनरल एंट्री नहीं करनी है. इन द बुक्स ऑफ द बलवंत कंपनी कौन है? हायरर है. सो इन द बुक्स ऑफ द हायरर वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स. कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे? फर्स्ट मशीनरी अकाउंट, दैट इज क्योंकि वो मशीनरी परचेज कर रहा है. सेकेंड वेंडर्स अकाउंट, यहाँ पे कोई वेंडर का नाम नहीं दिया गया है इसलिए हम सिर्फ सिंपली वेंडर्स अकाउंट बनाएंगे. थर्ड डेप्रिशिएशन अकाउंट एंड फोर्थ इंटरेस्ट अकाउंट. ये 4 अकाउंट बनेंगे इन द बुक्स ऑफ द हायरर. सो पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इंटरेस्ट के साथ और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के साथ, राइट. सो अगेन द सेम मेथड विल बी अप्लाइड. हर एक सिचुएशन में ये टेबल है वो बुक में अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग दिया गया है, बट हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सेम मेथड फॉलो करेंगे, राइट. क्योंकि आपको ये हर एक सिचुएशन के लिए हर एक ये टेबल याद न रखना पड़े, यूनिफॉर्मली एक ही टेबल आपको याद रखना पड़े, इसलिए हम एक ही मेथड से जो हमने लास्ट टेबल बनाया था उसी मेथड से दिस वाला टेबल बनाएंगे, राइट. सो लेट्स सी द कैलकुलेशन फर्स्ट. अगेन सेम एज यस्टरडे वी हैव डिड, दैट इज डेट, cash price, installment, interest, credit towards the cash price and balance. The same method we are going to follow it. On 1/4/2008, the machine was purchased from 10,000 and down payment paid 4,000. On the down payment we have to pay no interest. Directly 4,000 is credit टूवर्ड्स द कैश प्राइस. 10,000 में से 4,000 पे हो गए, बाकी कितने बचे? 6,000, राइट. ऑन द नेक्स्ट ईयर 31st March 2009, closing balance was 6,000, so again opening balance will be 6,000. Now we have to calculate the interest. यहाँ पे इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड नहीं है, 2000 प्लस इंटरेस्ट. सो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज 6,006%. सो इट विल कम 360. और टोटल आएगा
2000 plus 360, that is 2360. Understood? And again cash price towards the price, installment minus interest, that is 2000. Last balance 6000 minus 2000, 4000. 6000 में से 2000 पे हो गए, अब सिर्फ 4000 बचे. नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2010 बचा 4000 बैलेंस बची थी, उसमें इंस्टॉलमेंट. सो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा. 4006%, 4006%, दैट इज 240. टोटल 2000 प्लस इंटरेस्ट, दैट मीन्स 2240. Remaining cash price to credit towards the cash price is 2240 minus 240, that is again 2000. 4000 में से 2000 पे हो गए, सिर्फ 2000 बचे. नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2011 क्रेडिट बैलेंस थी 2000. अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. 2000 पे 6%, 2000 पे 6%, that is 120. So 2120. Cash credit towards the price is 2000. 2000 पे करना था, 2000 पे हो गया. Ultimately it will become nil. So लास्ट में कोई भी बैलेंस नहीं बची, पूरे के पूरे 10,000 हमने पे कर दिए. राइट? This is how we prepare when the interest is not included in the installment. पहले हम क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट माइनस करके बाकी का कैश क्रेडिट टूवर्ड्स द प्राइस करते थे. बट यहाँ पे 2000 प्लस इंटरेस्ट है, तो उसके साथ ही इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर रहे हैं. राइट? नाउ लेट्स प्रिपेयर द अकाउंट्स. मशीनरी अकाउंट, वेंडर अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायरर. तो हमने अकाउंट बना लिए हैं, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट, दिस इज़ वेंडर अकाउंट, देन interest and depreciation account in the books of the Balwant and Company Limited. Balwant is a hirer. So now all the entries we have to meet in the books of the hirer. Let's see the calculation. हमने कल जनरल एंट्रीज की थी, राइट? उसके हिसाब से ही हम अकाउंट्स बनाएंगे. हमने ये एंट्रीज की थी, राइट? फर्स्ट एंट्री थी ऑन द साइनिंग ऑन द हायर परचेस अग्रीमेंट. जब हायर परचेस का अग्रीमेंट होता है तब हायरर कोई भी एंट्री नहीं करता है, राइट? सो ये एंट्री नहीं आएगी. और वन मोर थिंग, इन दिस इलस्ट्रेशन 3 वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स टिल ओनली 2010. कैलकुलेशन 2011 तक के है, बट हमें सिर्फ 2010 तक ही बनाना है. आप 2011 के लिए भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो फर्स्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायरर नहीं आएगी. देन लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड एंट्री. व्हेन द पेमेंट इज मेड ऑन द साइनिंग द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट साइन होता है तब हायरर क्या एंट्री करता है, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. अमाउंट इज डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट की अमाउंट है वो पेमेंट करता है. तो एंट्री क्या आएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट. सो हम डायरेक्टली एंट्री, जनरल एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्टली एंट्री करेंगे. दैट इज मशीनरी अकाउंट डेबिट ऑन 1/4/2008 बैंक अकाउंट ₹4000, क्योंकि डाउन पेमेंट कितना है 4000 है, जो हमने ये एंट्री कैलकुलेशन की थी. that is installment की amount 4000, right? This is the first entry. Now second entry, when the installment become due. इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तब हम कौन सी एंट्री करते हैं, कल भी हमने देखा था. असेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट. एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट. सो फटाफट से एंट्री करते हैं. मशीनरी की कैश प्राइस टुवर्ड्स द प्राइस है वो आएगी, इंटरेस्ट की अमाउंट इंटरेस्ट में आएगी और बाकी टोटल वेंडर्स अकाउंट में आएगा. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू
vendors account, amount is 2000 rupees, right? Machinery account debit, interest account debit, कौन सी डेट है अगेन? 31st March 2009, यहाँ पे होगी अगेन 31st March 2009. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट ₹360 to vendors account. So machine account debit, interest account debit to vendors account credit, that is 2000 from machinery, 360 from. So on 31st March 2009, by vendors account and by interest account. So from 1/4/2008 से 31st March 2009, अब इसी में ये इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री थी. अब आएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री. इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री क्या होगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, यानी कि हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कितना? 2360. सो टोटल 2360 paid to the vendors. So vendors account debit to bank account credit on 31st March 2009. Right? Now पहली एंट्री आई थी इंस्टॉलमेंट ड्यू की, दूसरी आई इंस्टॉलमेंट पेमेंट की. देन वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिशिएशन, और उसके बाद लास्ट में हम दोनों अकाउंट क्लोज करके P&L में लेके जाएंगे. राइट? सो पहले डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं. डेप्रिशिएशन की इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है? दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड अ 10% डेप्रिशिएशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन मेथड. सो कैलकुलेशन करते हैं. 10,000 का बैलेंस है, दैट इज कैश प्राइस है 10,000 का. 10,000 के 10%, दैट इज 1,000. दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड, सो हर साल 1,000 ही डिडक्ट होंगे. व्हाट वुड बी द एंट्री ऑफ द डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट. सो 1,000 का डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे. 1,000 टू मशीनरी अकाउंट 31st March 2009. ये सिर्फ 2009 की एंट्री है अभी तक. दैट इज यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट होगा 1,000 बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट 31st March 2009. ये दोनों एंट्रीज हो गई. पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू की, सेकेंड एंट्री इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, थर्ड एंट्री डेप्रिशिएशन की. लास्ट एंट्री इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन क्लोज करेंगे और बाकी ले जाएंगे P&L में, और मशीनरी और वेंडर्स का लिखेंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अगर होगा तो. सो वन बाय वन क्लोज करते हैं और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं. टोटल इज 6,000. यहाँ पे आएंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 6,000. Here it's 5,000 on 1/4/2010 to balance brought down, that is 5,000. Right? Now close the vendors account. 2,360 पे करने थे, वो पूरे पे हो गए this year. So this account is closed this year. Now close this. 360 we are going to transfer to the P&L account, right? So by P&L account on 31st March 2009, account is closed 360 पे. अगेन यहाँ पे डिप्रिशिएशन भी ट्रांसफ़र होके जाएगा बाय P&L अकाउंट 31st March 2009. अगेन ये भी अकाउंट क्लोज फॉर द 2009. नाउ on the next year of the 31st March 2010,
31 मार्च 2010। इंस्टॉलमेंट है 2240, इंटरेस्ट की अमाउंट है 240। नाउ फर्स्ट एंट्री आएगी इंस्टॉलमेंट ड्यू की। इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री आती है तो एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। कितना, 2000 मशीन का, 240 इंटरेस्ट का और 2240 वेंडर्स के, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दी है। सो टोटल इंस्टॉलमेंट इज 2240, 2000 मशीन में आएंगे और 240 इंटरेस्ट में आएंगे। सो आप याद रख लो, ये वेंडर्स अकाउंट में क्रेडिट होंगे, ये इंटरेस्ट डेबिट होगा 240 में और ये मशीन में आएंगे 2000। सो वेंडर्स अकाउंट 2000, इंटरेस्ट डेट आएगी 31 मार्च 2010 और ये यहाँ पे 9 होगा, सॉरी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 240 ऑन 31 मार्च 2010 टू वेंडर्स अकाउंट एंड टोटल 2240 इंस्टॉलमेंट इज ड्यू। सो पहले 2000 की एंट्री आएगी बाय, सॉरी यहाँ पे वेंडर्स नहीं आता, यहाँ पे मशीन आता है, बाय मशीनरी अकाउंट 2000, 240 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री हमने की इंस्टॉलमेंट ड्यू की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट। नाउ सेकेंड एंट्री इज इंस्टॉलमेंट पेमेंट की। इंस्टॉलमेंट पेमेंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट है 2240। सो वो वेंडर्स को हम पे करेंगे, दैट इज 2240 बैंक अकाउंट ऑन 31 मार्च 2010, राइट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। थर्ड एंट्री आएगी अगेन डेप्रिशिएशन की। सो ऑन 31 मार्च 2010 1000 का डेप्रिशिएशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में 1000 क्रेडिट करेंगे, दैट इज बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट ऑन 31 मार्च 2010, राइट। सो पहली एंट्री आई इंस्टॉलमेंट की ड्यू की, देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, थर्ड डेप्रिशिएशन की, राइट। अब लास्ट एंट्री आएगी क्लोजिंग की। सो साथ में सब अकाउंट क्लोज ही करते जाते हैं। 2010 का क्लोज करेंगे 7000, 6000, बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस, सॉरी कैरी फॉरवर्ड ऑन 1/4/2010 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 6000, राइट। वेंडर्स अकाउंट क्लोज करेंगे, वो तो कंप्लीटली क्लोज हो ही गया। 2240 पे करना था, 2240 पे कर दिया। वेंडर्स अकाउंट, सॉरी इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके कहाँ पे लेके जाएंगे, पीएनएल पे। सो बाय पीएनएल अकाउंट ऑन 31 मार्च 2010 अकाउंट क्लोज। डेप्रिशिएशन ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 2010 अकाउंट क्लोज। हमें ये लेजर एंट्री करनी थी टिल 2010। सो हमने टिल 2010 सारी एंट्री कर दी है, 2011 की एंट्री नहीं करनी है। अगर करनी होती तो हम वही से सेम वे में कैरी फॉरवर्ड करते कि इंस्टॉलमेंट ड्यू हुआ, इंस्टॉलमेंट देन पेमेंट होगा, बाद में
इंटरेस्ट की अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में, अगेन डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी ट्रांसफ़र करेंगे पीएनएल में। जब 2011 तक की हमने कैलकुलेशन करनी होगी, बट यहाँ पे क्लियरली लिखा है यू हैव टू राइट डाउन टिल द 2010, सो हमने 2010 की तक ही एंट्री की। अंडरस्टूड हाउ वी मेक द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द हायरर। अंडरस्टूड। अब मान लो कि आपको अभी अकाउंट्स बनाने हैं नॉट इन द बुक्स ऑफ द हायरर, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। सो अगर वेंडर के अकाउंट में अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर्स बनाने हैं, तो कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? 2 ही अकाउंट्स बनेंगे। फर्स्ट इज़ अ हायरर अकाउंट और परचेजर अकाउंट। जिसने हमें बेचा है वो परचेजर है, उसका अकाउंट बनेगा, और दूसरा बनेगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट वेंडर के लिए इनकम है, सो वो इनकम का एक अकाउंट बनेगा, दैट इज इंटरेस्ट अकाउंट, एंड सेकंड इज हायरर अकाउंट। राइट, ये 2 ही अकाउंट बनेंगे। इस हिसाब से ही एंट्रीज होंगी। राइट, मैं एक बार दिखा देती हूँ कैसे एंट्रीज करनी है। आपको लेजर बनाने हैं तो आप कैसे एंट्री करोगे? जब साइनिंग अमाउंट ऑफ द अग्रीमेंट होगा तभी ही आप एंट्री करोगे। फर्स्ट दैट इज हायरर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट फुल अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट आएगी कैश प्राइस, यानी कि टोटल आपने जितना कैश प्राइस किया है वो अमाउंट आएगी। राइट, देन जब आप रिसीव करोगे डाउन पेमेंट, सो आप बैंक में रिसीव करोगे और क्रेडिट होगा हायरर्स अकाउंट। यहाँ पे हायरर अकाउंट डेबिट हुआ था फुल अमाउंट से, उसमें से सम ऑफ अमाउंट मिल गई है डाउन पेमेंट्स की, तो वो अमाउंट क्रेडिट करोगे। राइट, नाउ बाकी की 4 एंट्री यहाँ है वो हर ईयर होती है। राइट, सो अगेन रिपीटेशन होगी, ये 2 एंट्री रिपीट नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ द वेंडर ऑल्सो। नाउ थर्ड एंट्री इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री। इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट की अमाउंट ही आएगी, दैट इज हायरर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट? सिर्फ इंटरेस्ट की। मान लो यहाँ पे इंटरेस्ट 360 था, राइट, सो 360 वाली अमाउंट ही आएगी। यहाँ पे 360 अमाउंट थी इंटरेस्ट की, यही वाली एंट्री आएगी। राइट, देन यू हैव टू पे द होल इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी, यहाँ पे होल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आएगी, यानी कि यहाँ पे वेंडर्स को हमने पे किए थे 2060 और उस साइड वेंडर रिसीव करेगा 2360 फ्रॉम यू। दैट मीन्स द बैंक अकाउंट डेबिट टू हायरर अकाउंट क्रेडिट फुल अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। डेप्रिशिएशन की एंट्री वेंडर नहीं करता है। राइट, और लास्ट में इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेगा पीएनएल में। अगेन सेम वे यहाँ पे भी हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर रहे थे पीएनएल में, बट यहाँ पे इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस था इसलिए पीएनएल में डेबिट होगा और यहाँ पे पीएनएल में क्रेडिट होगा, क्योंकि वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम है। अंडरस्टूड। एक बार और अकाउंट्स दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपको अकाउंट बनाने हैं। ये जो कैलकुलेशन है वो हमने कल की थी जनरल एंट्रीज, उसके हिसाब से ही अकाउंट है, दैट इज इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, दैट इज एबीसी कंपनी लिमिटेड। सो पार्ट 1 में जिसकी हमने जनरल एंट्री की थी उसकी वेंडर्स की बुक में ये लेजर बने हुए हैं। अंडरस्टूड। अगर आपको जनरल एंट्री आती है तो आपको अकाउंट्स बनाने भी आ जाएंगे। अंडरस्टूड। आपको प्रैक्टिस में करने हैं प्रैक्टिकल नंबर 1 महेश परचेज अ मशीन फ्रॉम जयेश, ये वाला प्रैक्टिकल करना है। और सेकंड करना है लेटेस्ट एग्जामिनेशन का फर्स्ट अमीर एंड गरीब लिमिटेड वाला। राइट, ये आपको प्रैक्टिस में करना है। ओके, और आपको याद रखना है, पहले तो आप जनरल एंट्री फिक्स कर लो, याद कर लो, और अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करना है वो याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगी, जो हम टेबल बना रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक सम में टेबल की अलग अलग सिचुएशन आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे बी पॉइंट किया था, वैसे ही
बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिसमें बहुत सारी कैलकुलेशन होगी। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो टेबल होगी, बाकी जो अकाउंट्स बनेंगे वो सेम बनेंगे, कोई भी सम हो। सो अकाउंट की अमाउंट भी उसी हिसाब से आएगी जो अभी तक जिस हिसाब से ये आई थी। तो जनरल एंट्री एंड द लेजर वर रिपीटेड सेम मेथड इन द ईच मेथड। कोई भी सिचुएशन होगी, अगर अकाउंट्स बनेंगे या तो जनरल एंट्री बनेगी, सेम मेथड से हर एक सम में बनेगी, बट कैलकुलेशन ऑफ दैट टेबल विल बी डिफर फ्रॉम ईच एंड एवरी सम। सो नाउ इन द नेक्स्ट lecture we are focusing on that table only. So hope you are clear with the journal entries and how to prepare a ledgers, right? और आप प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि जर्नल एंट्री कैसे लिखेंगे और अकाउंट्स कैसे बनाएंगे, राइट? थैंक यू।